Greetings of the day. I Chavi Gupta welcome you all in today's session. We were discussing about cell, that is it is the basic structural and functional unit of life. Now we were discussing about the cells who discovered it, that is Robert Hooke. That is Robert Hooke. He discovered the first cell in cork and the structure appears like a honeycomb structure. See this one. These are your honeycomb structure which was discovered in cork. Now, but after some time there were some modifications and some new discoveries was led to a new cell structure, that is it includes some organelles, some components of cell. Now we will first discuss that components of the cell, that is it may be that plants and animals have some differences that we are discussing about. Plants and animal cells हमने पढ़े थे, उनमें कुछ ना कुछ differences थे. Now what is the basic difference in plants? That in plants you have, that is outer wall, cell wall presently, plastids presently, and in animal cell you don't have any cell wall and no plastids. Fine, this is the basic difference in their structures. So there must be a difference in their function also. Now we will discuss that. Now before basically the structure of the cell is formed of three major parts. Cells में तीन major parts and that is plasma membrane which is known as cell membrane. हम plasma membrane को cell membrane भी बोलते हैं. Now what is a plasma membrane? The layer that separates the cell content from the external environment is the plasma membrane. Means जो आपकी outer covering है वो आपके cell को separate करे बाहर के environment से. फॉर एग्जाम्पल योर स्किन. नाउ बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं बट बॉडी के बाहर आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बट योर स्किन इज एक्टिंग एज अ बैरियर. आपकी स्किन एज अ बैरियर की तरह वर्क कर रही है. दैट मीन्स स्किन क्या हो गया आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को, ब्लड वेसल्स को और आपके स्किन के अंदर जो टिश्यूज हैं उन सबको सेपरेट करिए किससे, आपके इन्वायरमेंट से. इट इज़ नोन एज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द सेकेंड कंपोनेंट इज योर साइटोप्लाज्म. Next is your cytoplasm. Now what is a cytoplasm? Cytoplasm is basically the space between the plasma membrane and the nuclear membrane. We know that in a cell, in class 8 you have studied that what is a cell and what are the different parts of cell. Fine, in cell you have a plasma membrane, you have a nuclear membrane. Fine, so in between that you have a space and this space is known as cytoplasm. Now we have discussed that protoplasm was discovered by Purkinje, but I told you that there is a difference between protoplasm and cytoplasm. Now what is the difference between protoplasm and cytoplasm? Now cytoplasm is the space but the fluid content which is present over there, it is living, so it is known as protoplasm. Now next is your nucleus. What is a nucleus? It is the basic most important part of the cell. अगर ये नहीं होगा तो आपकी एक्टिविटीज नहीं कंट्रोल की जाएंगी. नाउ दीज आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. नाउ दिस इज योर प्लांट सेल एंड दिस इज योर एनिमल सेल. नाउ सी द स्ट्रक्चर इन लार्ज व्यू. Now this is your plant cell. See, you have an outer covering as cell wall and then you have a plasma membrane. Fine, and see this is your chloroplast. These are appearing green in color, so it is your chloroplast which is a kind of plastids. Now if we see animal cell, this is your animal cell. See the outermost covering you must be having, that is plasma membrane. This blue color structure is your plasma membrane. Okay, this is your outer covering. In anywhere you can see cytoplasm, chloroplast. क्या आपको कहीं पे chloroplast दिख रहा है एनिमल सेल में? नहीं. That means it does not contain any chloroplast. Now first, what is plasma membrane? Plasma membrane क्या होती है? It separates the cell content from the external environment. वो आपके सेल कॉन्टिनेंट को अलग करती है, सेपरेट करती है किससे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से.
यही हमने आपको बोला एज अ स्किन, एज अ बैरियर। स्किन क्या है, एज अ बैरियर की तरह वर्क कर रही है। दैट मीन्स कि वो आपके बाहर के एटमॉस्फेयर को अंदर के एटमॉस्फेयर से सेपरेट कर रही है। मीन्स आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उसको कौन सेपरेट कर रहा है बाहर से, आपकी स्किन सेपरेट कर रही है। सो इट इज सेम एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ सी दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्वासी फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। व्हाट इट मीन्स दैट इट हैव अ कवरिंग ऑफ lipid layer, this light purplish color and this bottom light purplish color is your lipid bilayer because two in nature, one is up and one is down. Okay, lipid because it is a fat layer. Okay, now in between you have these structures, these dark light green colors, these are your protein molecules which makes it fluid mosaic model or quasi fluid mosaic model. Now we have a chain of carbohydrates. These hexagonal shaped or pentagonal shapes are your carbohydrate chains. Now see, in this you can see that some purple yellow color molecules are going inside the plasma membrane. Okay, now two are going inside but one cannot go inside the layer. आपका दो अंदर जा रहा है बट एक बाहर ही रहेगी। दैट मीन्स इट अलाउज द एंट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके कुछ मॉलिक्यूल्स की एंट्री को ही अंदर बाहर जाने की परमिशन देता है, बाकी सबको नहीं देता। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी परमिएबल इन नेचर। नाउ what it says that all the membranes whether external or internal are now called cell membrane। अंदर हो या बाहर हो दोनों को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नाउ इट इज नोन एज बायो मेम्ब्रेन। बायो क्यों, बिकॉज ये लिविंग बींग्स में अवेलेबल है। नॉन लिविंग बींग्स में वो कॉक में कन्वर्ट हो गई या डेड स्किन हो गई। सो इट इज अ बायो मेम्ब्रेन जो लिविंग बींग्स में अवेलेबल होती है। नाउ दे कवर नॉट ओनली द सेल, ये सिर्फ सेल को कवर नहीं करते बट ऑल्सो अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म एज अ कवरिंग ऑफ सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स। अ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ अ सेल, ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज इट एक्सट्रीमली डेलिकेट इलास्टिक सेलेक्टिवली परमेबल। सी द वर्ड सेलेक्टिवली परमेबल। व्हाई इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, अगर आपने डायग्राम में देखा हो, इस डायग्राम में कुछ ही सी इन दिस डायग्राम सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग इनसाइड एंड सम आर नॉट गोइंग इनसाइड। मीन्स कुछ अंदर जा पा रहे हैं, कुछ अंदर नहीं जा पा रहे। दैट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल। सी वी हैव थ्री मॉलिक्यूल्स, बस टू आर गोइंग इनसाइड, दो अंदर जा रहे हैं बट एक अंदर नहीं जा पा रहा मेम्ब्रेन के। सो दैट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल, कि वो किसी को तो जाने की परमिशन दे रहे हैं, किसी को जाने की परमिशन नहीं दे रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्शन करते हैं ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, यही करते हैं सिलेक्शन में। सो परमेबल इज परमिशन देना। ओके, मेम्ब्रेन किसी को परमिशन दे रही है अंदर बाहर जाने की, किसी को नहीं दे रही। सो इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट, इट सेलेक्टिवली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। वही हमने आपको बोला है, बताया कि वो कंट्रोल कर रही है मूवमेंट, सब्सटेंस की मूवमेंट कंट्रोल करके। ये तो इनके पूरा का पूरा सेल उठ के बाहर जा रहा है, कुछ ही कंटेंट बाहर जाएंगे। लाइक आपकी बॉडी में स्वेट होता है, फाइन, आपके बॉडी में स्वेट है, स्वेट में अगर एक्सेस ऑफ सॉल्ट आ जाए तो वो, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ सॉल्ट होगा तो बॉडी क्या चाहेगी कि वो सॉल्ट बाहर रिमूव हो जाए। तो उसकी परमिशन कौन देगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बॉडी से बाहर जाना है या नहीं जाना। ओके, gases like oxygen, carbon dioxide move in and out of the plasma membrane by diffusion। diffusion हमने पढ़ा था in matter in our surrounding, that movement of solute from higher concentration to lower concentration। तो सेम यहाँ पर है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट हो रही है अंदर बाहर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाटर एंटर्स और लीव्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। ना अब ये क्या कह रहा है कि वाटर एंटर करेगा
और लीव मतलब बाहर निकल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। नाउ अगर गैसेस डिफ्यूज हो रही है, गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जा रही है तो वो डिफ्यूजन है। बट अगर वाटर अंदर बाहर जा रहा है तो वो क्या है आपका ऑस्मोसिस है ना। ऑस्मोसिस क्या होता है, फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट। You will just have a look on functions of plasma membrane. Then we'll move forward. It selectively controls the entry and exit of materials inside and outside the cell. It separates the cell from the external environment, ये मैंने आपको बताया. It protects the cell from injury. मतलब अगर आपका सेल को कोई डैमेज हो जाता है, आपके आउटर कवरिंग पे रह जाएगी, अंदर वाली चीज़ों को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा. लाइक आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में आपकी ऊपर वाली स्किन टेयर हो गई, फाइन, फट गई, बट क्या अंदर वाले सेल्स को हार्म हुआ? नहीं. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वहाँ पे क्या अवेलेबल थी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब स्किन अवेलेबल थी वहाँ पे. इट बाउंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल एंड गिव्स इट शेप. यहाँ पे शेप भी देगा क्योंकि आपके कंटेंट्स को प्रॉपरली पकड़ के रख रहा है वो. इट अलाउज द फ्लो ऑफ मटीरियल्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेल्स. इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेल्स का मतलब क्या है कि जो मटेरियल अंदर बाहर जा रहा है वो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन जा रहा है. In nerve cells, the plasma membrane take the permission in transmission of impulse. ये वाला पॉइंट हम थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे, अभी नहीं. Now, these are the main points that you need to know. Now, next point is 8 point. Sugars, minerals, nutrients, amino acids, and many other substances required for biological activities. आप सबको पता है, हम सबको सॉल्ट, शुगर और कुछ विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं. सो हमारी बॉडी को किस चीज़ की नीड है, कौन एक्सेस में है, कौन डिफिशिएंसी है, उसकी रेगुलेशन कौन करेगा? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बाय अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इट इज नोन एज मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. नाउ एनिमल सेल्स कैन ऑल्सो टेक इन एंड रिमूव लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ मटीरियल सच एज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स. अब एनिमल सेल्स में कुछ पार्टिकल्स अंदर आ गए, कुछ पार्टिकल्स बाहर चले गए. सो दीज कैन बी लार्ज इन साइज एंड दीज कैन बी स्मॉल इन साइज. ओके, सो ये भी आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही होगा, बट कैसे होगा? नाउ लेट्स सी. दिस इज द पॉइंट नंबर 9. एनिमल सेल्स कैन ऑल्सो टेक इन एंड रिमूव लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ मटीरियल सच एज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स. Now you have two processes here, that is phagocytosis and pinocytosis. Now what is the difference between phagocytosis and pinocytosis? Major difference is that in phagocytosis, invagination of plasma membrane means आप पूरा का पूरा उठा के जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको पूरा का, या आपका फूड मटेरियल है उसको पूरा का पूरा अपनी बॉडी में ले रहे हैं, फाइन. बट इन पिनोसाइटोसिस आपका जो वेसिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होंगे वही अंदर जा पाएंगे. मीन्स आप उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर नहीं लेके जा सकते. इट इज़ योर पिनोसाइटोसिस. नाउ सी, इन फेगोसाइटोसिस यू हैव दिस एरो शेप स्ट्रक्चर्स, सेमीकोलन स्ट्रक्चर्स. नाउ इट इज गोइंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाइन. बट इन पिनोसाइटोसिस you have these vesicles which are going inside. Here we have entry of liquids in पिनोसाइटोसिस, वही वेसिकल फॉर्म्स में अवेलेबल है. बट एंट्री ऑफ सॉलिड लीड्स टू फेगोसाइटोसिस. लाइक अमीबा क्या करता है, अपना फूड पूरा का पूरा एंगल्फ करता है, दैट इज अ फेगोसाइटोसिस. ओके, now these are the functions of plasma membrane. Now before that we were doing a point, that is that water enters or leaves the plasma membrane by osmosis. Here we are discussing diffusion and osmosis. Both are the two terms. We are saying that gases like oxygen and carbon dioxide move in and out of the plasma membrane. Okay, but when we talk about water, we talk to a new term, that is osmosis. Now see, what is osmosis? The passage of water or solvent from a region of its high concentration through a semi-permeable membrane. Now what is a semi-permeable membrane? This is your plasma membrane. कि किसी को अंदर बाहर जाने की परमिशन दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा. Now from a region of high concentration to a low concentration. यही आपका डिफ्यूजन में था. But what is the difference in diffusion and osmosis? In diffusion, the solute is
ट्रैवलिंग, दैट इज अगर आपने परफ्यूम को स्प्रे किया तो परफ्यूम ट्रैवल कर रहा था पूरे रूम के अंदर गैस के अकॉर्डिंगली। बट अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे वाटर मतलब सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा। नाउ सी हाउ, आप सबने एक रेजिन किशमिश का देखा होगा, जब मम्मा किशमिश को खीर में डालती हैं या पानी में डालती हैं, वाटर में डालती हैं, तो दे विल स्वेल अप, ठीक है। तो क्या किशमिश मूव किया, या किशमिश के जो रेजिन्स, किशमिश को हम रेजिन्स कहते हैं, जो रेजिन्स है वो मूव किए? नहीं, एक्चुअल में जो रेजिन के अंदर क्या गया और क्या बाहर निकला, दैट इज योर वाटर। जब रेजिन्स के अंदर वाटर गया तो वाटर मूव करा, बट जब रेजिन्स में से वाटर बाहर निकला तो भी वाटर मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट इज योर ऑस्मोसिस। कहीं पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, कहीं पे वाटर कंसंट्रेशन कम थी। नाउ सी द पैसेज ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन, यही बोला है। नाउ दिस इज एन इलस्ट्रेशन, दिस डॉटेड लाइन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन, we have a solute molecule and many water molecules. These small pink dots are your solute molecule and these blue color dots are your water molecule. Now you can see that the water molecule is in excess, that is your weak solution. Okay, dilution बताया था मैंने आपको, क्या वाटर की कंसंट्रेशन ऐड ऑन करे जा रहे हैं, वाटर ऐड ऑन किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। बट जहाँ पर ये आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, यहाँ पर क्या आपका वाटर की कंसंट्रेशन कम है, बट जो पिंक कलर के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है। सो यू कैन सी दैट इन दिस केस इन वीक सॉल्यूशन यू हैव मोर वाटर ड्रॉपलेट्स, आपके पास वाटर ज़्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, वीक सॉल्यूशंस में ज़्यादा है। ओके, सो ये वीक सॉल्यूशन से ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, वाटर का अमाउंट कम है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग से हाई में जाना चाहिए, तो क्या जाएगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट ट्रेवल करता है। ओके, तो सॉल्वेंट कहाँ पे ज़्यादा है, वीक में, तो सॉल्वेंट वीक से कहाँ जाएगा, स्ट्रॉन्ग में जाएगा। फाइन, सो ऑस्मोसिस से पहले क्या था कि वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों सॉल्यूशंस इक्वल थे, बट ऑस्मोसिस के बाद क्या हुआ कि जो वीक सॉल्यूशन था उसमें वाटर कंटेंट कम हो गया एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट इंक्रीज हो गया, ये आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर इन लिविंग सिस्टम्स एज वेल एज इन देयर एनवायरनमेंट। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। नाउ सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमने आपको बताया, बिकॉज इट अलाउज द फ्री डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। A dilute solution has more concentration of water molecules in comparison to a concentrated solution which has a low concentration of water. See, this weak solution is a diluted solution and this strong solution is your concentrated solution because यहाँ पे water की concentration बहुत कम है आपकी। Now let us see, अब हम ये बात करें कहीं पे water concentration ज़्यादा है, कहीं पे water concentration कम है। So accordingly we have three types of solution, that is hypotonic, hypertonic and isotonic solutions. Now what is an hypotonic solution? Hypo means swell होना, hypo means swell होना, okay, means अंदर ज़्यादा होगा बाहर कम होगा। Clear? Now when a cell is placed in a solution having lower concentration of solute, जब आप एक सेल को प्लेस कर रहे हैं एक सॉल्यूशन में हैविंग लोअर कंसंट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट की एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। फाइन, द वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम एक्सटर्नल टू द इंटीरियर, एक्सटर्नल से अंदर आ रहे हैं। लाइक आप ये एरोस देख रहे हैं, एरोस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहा है। सो दिस लीड्स टू एन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मीन्स कि आपका बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। ओके, सो दैट मीन्स बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बाहर वाले केस में वाटर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट हायर से लोअर में मूव करेगा,
लोअर कहाँ पर है, अंदर सेल के. सो इट इज नोन एज योर हाइपोटोनिक सोल्यूशन. नाउ यू कैन डू इट इन योर होम दैट यू हैव रेजिन्स. आपके घर में किशमिश है, आप 2-4 किशमिश लीजिए, 2 और 4 किशमिश लीजिए, रेजिन्स लीजिए. क्या करिए, आप उस किशमिश को एक बाउल के अंदर वाटर में रखिए. फाइन. जब आप उस किशमिश को, रेजिन्स को बाउल के अंदर रखेंगे, वाटर कंटेनिंग बाउल में, सो अल्टीमेटली क्या, कुछ टाइम के बाद वो रेजिन्स स्वेल अप हो जाएंगे, फूल जाएंगे. क्यों? क्योंकि रेजिन्स के अंदर वाटर मूव कर गया, मोटे हो गए. सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑलवेज लीड टू स्वेलिंग अप ऑफ द सेल. सेल फूल जाएगा, सूज जाएगा. इट इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस और यू कैन से इट एज hypotonic solution. Now next is your before this we will go with a hypertonic. Now what is hypertonic? Before beginning with hypertonic you must have heard about the term high BP, high blood pressure, hypertension. hypertension में क्या होता है, हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आप क्या करते हो, अंदर बहुत ज़्यादा है, मीन्स सेल के पास बहुत ज़्यादा और सराउंडिंग्स में कम है. जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमारे पास गुस्से में एंगर अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है. तो हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली अंदर से एंगर बाहर निकालते हैं और अपने आप को रिलीफ करते हैं. तो कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है. ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, अंदर, सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है. फाइन. सो इस केस में होगा सेल वाटर लूज करेगा. जब सेल वाटर लूज करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी सेल वॉल्स श्रिंक हो जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन्स श्रिंक कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा. सो इट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. नाउ व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मीन्स सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की और लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की. Now the water molecules move from the cell sap to the external solution. यहाँ से बाहर जाएगा. See, arrows दिखा रहे हैं कि यहाँ से बाहर जाएगा. So such a solution is known as hypertonic solution, and this process is known as exoosmosis. Now the third process is your isotonic solution. What does this word isotonic means? Iso means equal, ना profit ना loss. ओके, सो आइसो मीन्स कि ना तो अंदर जा रहा ना बाहर जा रहा, जैसा सेल था एग्जैक्टली वैसा ही मेंटेन कर रखा है उसने अपने आप को. दिस इज नोन एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नाउ व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन हैविंग एग्जैक्टली द सेम कंसंट्रेशन, सी एग्जैक्टली द सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द सेल सैप, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट. सी यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट नहीं है across the cell membrane. So it is known as isotonic solution. Now you will do an activity at your home. What you will do is you just take 2 or 4 raisins, keep it in a bowl containing water. So what will happen, that the raisins are small in size, but when you keep it in a bowl they will swell up. वो swell हो जाएंगे, that means hypotonic solution will take place. But when they swell up, remove that raisins from the bowl and keep it in another bowl which does not contain any water, जहाँ पे कोई water content नहीं हो. Okay, now what you will see that after some time the raisins will lose water and become shrink in size, मतलब छोटे हो जाएंगे साइज में, सिकुड़ जाएंगे. So that means this is your hypertonic solution. Now isotonic is कि आपने सेल में ना तो कुछ ज़्यादा गेन किया ना कुछ कम गेन किया. अब आप क्या कीजिए, सेल को शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दीजिए, ज़्यादा शुगर नहीं, मतलब हाफ टी स्पून ऑफ शुगर, एंड आप एक बाउल में रख दीजिए वाटर के साथ. जब आप शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें रेजिन्स को रखेंगे तो ना तो सेल के अंदर वाटर जाएगा ना सेल से वाटर बाहर निकलेगा, मीन्स रेजिन्स ना तो वाटर लेगा ना रेजिन्स वाटर देगा. सो इट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. प्लीज do this activity and you will get to know what is actually osmosis is. So see the diagrammatic representation total, that in hypo the water is going inside the cell, that is endoosmosis. हाइपर इज एक्सो कि वो बाहर जा रहा है सेल से सराउंडिंग मीडियम से, आइसो में अंदर बाहर दोनों हो रहा है जिससे उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. नो
I hope this is clear to you. That's all for today. Thank you.